Assalamu alaikum and welcome to our platform aaci.pk. Today we will discuss poem Fatima Jinnah Enters Her Brother's Study by Shadab Hashmi. First of all, we see poetess introduction Shadab Hashmi. Shadab Hashmi is an American poetess and editor of Maggie Park Poet Anthology and Mamad. Columnist of Three Quacks Daily. Her poetry, written in English, has been translated into Spanish and Urdu. Her poetry appeared in Poetry International, Volume Atlanta Review, Journal of Post-Colonial Writings. Her poetry focuses on feminism, histories, politics, native cultural values, traditions, and family. We see element of Sufism in her writings. She exposes hypocrisy of society and hypocrisy of politics in her writings. We see role of media and reality of real event in her poetry. Her poetry is greatly influenced by her root and cultural values, that is Pakistan. We see, although she living in America, but her work, her writings show close contact with her native culture and knowledge about his traditions, norms, and histories. She presents element of Sufism somehow in her writings. Now we discuss our poem Fatima Jinnah Enters Her Brother's Study. First of all, we talk about the main idea of the poem. This poem is cultural and political manifestation of Pakistan. Using Jinnah's figure as a representative of glorious struggling past, Hashmi compares and contrasts it with the present, which is loss without any action and change. Now we read the text of the poem. In your study, a large shadow spun of thought. Fatima Jinnah Enters Her Brother's Study is one of the remarkable poems by Shadab Hashmi. In this poem, she talks about many memories of Fatima Jinnah. जैसा कि हम इन फर्स्ट 2 जो वर्सेस हैं उनमें देख रहे हैं कि फातिमा जिन्ना जो है एंटर होती हैं अपनी ब्रदर्स स्टडी का मीन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये लाइब्रेरी भी हो सकती है, उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी हो सकते हैं, उनकी थिंकिंग भी हो सकती है, उनका आइडिया भी हो सकता है कि वो कायदे आज़म की जो लाइब्रेरी है या तो वहाँ पे एंटर हुई हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है उनकी जितने भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने लीड किया था जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आइडिया था ना 2 नेशन थ्योरी का। इन्होंने जो कायदे आज़म हैं इन्होंने उस आइडिया को लीड किया, उनको आगे लेके चले थे। उन्होंने स्ट्राइव की थी फॉर सेपरेट होमलैंड के लिए। और फातिमा जिन्ना जो हैं सिस्टर ऑफ कायद, वो भी जो हैं इनको इस काम में सपोर्ट किया था इन्होंने। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो उस टाइम पीरियड में चल रही थी और ये दोनों जो सिबलिंग्स हैं इन दोनों ने मिल के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। पोइम जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखी गई है और ये जो है पर्सपेक्टिव दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये एक पर्सपेक्टिव है ऑफ फातिमा जिन्ना। जैसा कि हमने देखा कि टाइटल जो है वो ही बहुत सिग्निफिकेंट है, जैसा कि फातिमा जिन्ना एंटर्स हर ब्रदर्स स्टडी। यहाँ पे जो हमने स्टडी का पहले ऊपर देखा है कि मीनिंग क्या क्या हो सकता है, ये जो है ये एक सिग्निफिकेंट इसका जो है पार्ट है इस पोइम में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पोइम में क्या हो रहा है।
What the camera will catch: a lizard between window slats, certain curtains sighing their dusty sighs on fine porcelain. यहाँ पे राइटर जो है ये एक मीडिया जो है उसको दिखा रहा है कि मीडिया जो है रोल ऑफ मीडिया दिखा रहा है यहाँ पे कि मीडिया कैसे जो न्यूज़ होती है उसको फेक तरीके से जो है लेके चलता है, फेक तरीके से प्रेजेंट करता है। बट द कैमरा विल कैच, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो असल इमेज है ना, जो असल जो राइटर जो है या असल जो कायदे आज़म की जितनी भी स्ट्रगल थी, मीडिया जो है यहाँ पे वो चीज़ हमें नहीं दिखाएगा। जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जितनी भी कॉस्टली चीज़ें हैं, जिनकी कीमत वाइज जो है ना, प्राइस वाइज जो चीज़ें जो हैं वो हाई हैं, मीडिया जो है वो उन चीज़ों को दिखाएगा, उन चीज़ों को मीडिया जो है वो प्रेजेंट करेगा। Now move on. Mother of pearl inlay and ivory handle things, then rain slanting in on leather trimmed gilt-edged things. The camera will feed on nonsense while the shadow stretches. राइटर जो है वो यहाँ पे कल्चरल इमेजरी, पॉलिटिकल इमेजरी एंड जोग्राफिकल इमेजरी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एन आइवरी हैंडल थिंग्स, ये एक इमेज है जो शो कर रहा है पीसफुल लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ, और जो पीसफुल उनकी मेंटल स्टेट थी कायदे आज़म की, वो जो है शो कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन वर्ड्स के थ्रू जो है राइटर जो है शो कर रही है कल्चरल रैली को। उसके बाद जो है ये वर्ड्स जो है ना पोइटस जो यूज़ कर रही है, जैसा कि रेन स्लैंटिंग इन, लेदर ट्रिम्ड, कैमरा, उसके बाद है आइवरी हैंडल थिंग्स, पर्ल इनले, ये सब चीज़ें जो हैं ये शो कर रही हैं उनके रिमोट पास्ट को, कल्चरल रैलिक को, एंड हिडन वेंचर्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम विच हैज़ टू बी मटीरियलाइज्ड। मतलब ये कि जैसे कायदे आज़म जो है उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की थी, उन्होंने जितना लॉन्गेस्ट टाइम जो है स्ट्रगल में, अपनी स्टडी में और अपने मिशन में जो है लगाया था, ऐसे ही हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमें जो अभी प्रेजेंट जो हमारी जनरेशन है उसको जो है ऐसे एफर्ट करके अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाना है। Long waking hours filled with work, hanging in corners between the leaves of monsoon, satched, maps half rolled, holding but a wish. Here, writer जो है हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल जो है कायद की वो शो कर रहा है थ्रू लॉन्ग वेकिंग आवर्स। ये जो इमेज उसने यूज़ किया है ना इसके थ्रू, उस हैंगिंग इन कॉर्नर्स, इसका मतलब है कि ये जो उनकी स्ट्रगल थी, जो प्रेजेंट जनरेशन है ना उसने इसको फोकस नहीं किया, इस पे वो फॉलो, इस जो उनकी राइटिंग्स थी उनको फॉलो नहीं कर रहे, ना ही उन्होंने कभी इनको पढ़ा, उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री को। ये सिर्फ एक कॉर्नर में लटकी हुई है, उनकी जितनी भी जो स्ट्रगल थी उसको, उनकी जितनी भी बुक्स हैं उनके बारे में जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको नहीं पढ़ रहे और उस पर अमल नहीं कर रहे। बिटवीन द लीव्स ऑफ मॉनसून सैच्ड मैप्स जो हैं, मैप्स का जो इमेज है यहाँ पे शो कर रहा है कायदे आज़म की जो डेथ है उसको, उनकी डेथ टाइम को शो कर रहा है कि उनकी जो डेथ हो गई थी अपने टू नेशन थ्योरी जब प्रेजेंट की, उनका जो मिशन था उससे पहले थोड़ा टाइम उनकी डेथ हो गई। हाफ रोल्ड, जो मैप्स हाफ रोल्ड है ना, ये एक इम्पोर्टेंट इमेज यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये शो करता है टाइम ऑफ हिज डेथ हिज वर्क इज इन इट्स हाफ स्टेज। मैप जो है ये टेरिटोरियल डिवीजन के लिए यूज़ किया गया है एंड इट इज़ अ जियोग्राफिकल इमेजरी एंड आल्सो पॉलिटिकल इमेजरी। होल्डिंग बट अ विश कौन सी थी उनकी? सेपरेट होमलैंड की, पाकिस्तान की। जो है टू नेशन थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल अभी नहीं हुई थी, तो थोड़ा टाइम पहले ही कायदे आज़म की डेथ हो गई। ये उस चीज़ को शो कर रहा है। राइटर जो है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, क्या वो पर्पस अब उसको
वो फुलफिल पर्पस हो रहा है यहाँ पे? क्या वो पर्पस जो है हम अभी फुलफिल कर रहे हैं? नहीं। इसके थ्रू राइटर जो है अपना सारा जो पास्ट है, राइटर जो है कायदे आज़म का जितना भी पास्ट है उनकी स्ट्रगल है पाकिस्तान के पीछे, इस पूरी पोइम में वो राइटर ने दिखाई है। ऑन द होल पोइम के लास्ट पे हम ये कहेंगे कि राइटर ने इमेजरी यूज़ करके ना, ये जो हमारी पोइटेस हैं इन्होंने इमेजरी यूज़ करके शो किया कि कल्चरल ट्रेडिशनल डिटीरियोरेशन एंड पोर्ट्रे किया है नेचर को, विच वंस ग्लोरियस इन इट्स मैग्निफिसेंस एंड ग्रेंजर इज नाउ लॉस एंड डिग्रेडेड। जो पहले जितनी भी ग्रेंजर थी, जितना भी ग्लोरियस पास था, वो जो है वो लॉस कर दिया हुआ लोगों ने। लोग जो हैं उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे और उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो डिग्रेड होता जा रहा है। जैसा कि इमेजेस राइटर ने यूज़ की हैं, कर्टन साइंग, देयर डस्टी साइज, हाफ रोल्ड मैप्स, लिजर्ड, डस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिग्रेडेशन को शो कर रही हैं। सो अल्लाह हाफिज़। यही पोइम का जो है मेन आइडिया था, सारे की सारी पोइम जो है उसमें यही एक मेन आइडिया है कि कायदे आज़म की स्ट्रगल और उसको जो अब जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा, उनका जो ग्लोरियस पास था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, और जितनी भी जो हमारी यंग जनरेशन है उसको अभी जो है वो स्ट्रगल करनी चाहिए, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं कर रहे। आइडल लोग जो हैं वो फ्यूटाइल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर